Hello and welcome everybody. First of all, a group of words that comes at the end of a sentence and makes it a question is called a question tag. सबसे पहले definition देख लेते हैं. Question tag की जो definition है वो ये है कि ऐसे group of sentence जो किसी भी sentence के end में आकर उसे एक question बना देते हैं. For example, is it raining heavily? So rather than this, we can put it this way. It is raining heavily. Example. Ram is absent today. A sentence, and at the end I'll just place a question. Isn't he? So this is the group of word which we place at the end to make this sentence a question. That is called a question tag. Let us understand it better. Let's go to an example. Look at this sentence. You are willing to work on the project, aren't you? So this is a positive sentence, and at the end of this positive sentence we are adding a negative question. And we convert it into an interrogative sentence. Look at the second example. Jayesh is going to the trade fair with his father, isn't he? Again, in the sentence, it is a positive sentence. We have converted into an interrogative sentence by adding a short negative question at the end. The food is delicious, isn't it? The sentence is positive. The food is delicious is a positive sentence. उसके end में हमने एक negative question लगाकर इसे interrogative sentence में convert कर दिया. The food is delicious, positive statement. Isn't it? Negative question. Now it becomes an interrogative sentence. Fourth example. They were playing hockey. Positive sentence है. End में हमने negative question लगा दिया. Weren't they? और ये negative question लगाने से अब ये positive sentence interrogative sentence बन गया है. Question पूछने का काम कर रहा है. उसमें question mark लगा हुआ है. तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हम एंड में लगा रहे हैं, these short questions are called question tags. These tags did not change the order of the subject and the verb. ये जो tags होते हैं ये subject और verb के order को change नहीं करते. They just converting the sentence into a interrogative sentence. Moving ahead, look at this sentence. We didn't swim across the lake. Didn't means a negative statement. We are converting into an interrogative sentence by adding a positive question at the end. Did we? So did we is a positive question. And by adding the positive question at the end, we are converting the sentence into an interrogative sentence. So a negative sentence, we will add a positive question at the end and the sentence will become interrogative. Look at the second example. They weren't speaking to each other. Were they? यहाँ पर
दे वरंट स्पीकिंग टू ईच अदर एक नेगेटिव सेंटेंस है, उसके एंड में हमने एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगा दिया वर दे, और अब ये नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया. द डिश wasn't that bad, नेगेटिव सेंटेंस. was it, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, और अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया. इन दीज सेंटेंसेस द नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर चेंज्ड इनटू इंटेरोगेटिव्स बाय एडिंग अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. द क्वेश्चन टैग विल ऑलवेज हैव द सेम टेंस एज द वर्ब. जो वर्ब का टेंस है वही क्वेश्चन टैग का भी टेंस होगा. ऐसा नहीं है कि अगर सेंटेंस का टेंस पास्ट टेंस है और क्वेश्चन टैग का टेंस आपने फ्यूचर लगा दिया, इट इज नॉट पॉसिबल. टेंस शुड बी सेम. पास्ट टेंस है, सेंटेंस पास्ट टेंस है तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट टेंस होना चाहिए. द सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट मैचेस द सब्जेक्ट इन द टैग. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो क्वेश्चन टैग में भी सिंगुलर होना चाहिए. प्लूरल है तो क्वेश्चन टैग में भी प्लूरल होना चाहिए. सब्जेक्ट को वर्ब अग्री करना चाहिए. A positive statement takes a negative question tag, whereas a negative statement takes a positive. तो ये जो केस है रिवर्स केस है. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. स्टेटमेंट नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, नो लगा हुआ है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. लुक एट एन एग्जांपल. यू लाइक दीज मशरूम्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट. क्वेश्चन टैग डोंट यू, नेगेटिव लगा है. जॉन लाइक्स जर्मनी, पॉजिटिव स्टेटमेंट. क्वेश्चन टैग डजंट ही, नेगेटिव लगा हुआ है. तो सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव. Sia won the music contest, positive statement. Didn't she? Negative question tag. Now there's one more highlighting point here. In these sentences there's no helping verb. इन सभी sentences में कोई helping verb नहीं है. जब sentence में कोई helping verb नहीं होगा तो question tag में हमें do, does, did use करना है. Important point. Coming to the basic definition. A question tag is a simple statement followed by a short question to ask for confirmation or whether the statement is correct or not. Example, she is an honest girl. Positive sentence, isn't she? Negative question tag. You have to get up early in the morning. Positive sentence, don't you? Negative question tag. So ऐसे group of words जो sentence के end में आकर उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, कंफर्मेशन के लिए पूछे जाते हैं, सेंटेंस करेक्ट है या नहीं इसके लिए पूछे जाते हैं, उन्हें क्वेश्चन टैग्स हम कहते हैं. दिस इज अ स्मॉल चार्ट व्हिच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन. नाउ लुक एट दिस टेबल. द फर्स्ट एग्जांपल, पॉजिटिव सेंटेंस, इट इज अ सनी डे टुडे. इट इज अ सेंटेंस. इट इज अ सब्जेक्ट, इज द हेल्पिंग वर्ब, a sunny day today. Now अब जब हमने इसका क्वेश्चन टैग फॉर्म किया है तो हमने सब्जेक्ट को एंड में लिया है और हेल्पिंग वर्ब के आगे हमने नॉट लगा दिया है, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगा दिया है. इज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इजंट लगा दिया है. सेंटेंस, इट इज अ सनी डे टुडे, क्वेश्चन टैग इजंट इट. अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन. हेल्पिंग वर्ब के आगे हमने नॉट लगाकर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है. इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन इजंट बन गया है और प्रोनाउन हमने उसके बाद ले लिया है. क्वेश्चन टैग. सेकंड एग्जांपल, शी हैज अ पेट कैट. शी हैज अ पेट कैट. सब्जेक्ट शी को हमने एंड में ले लिया है. हेल्पिंग वर्ब हैज का हमने नॉट लगाकर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैजंट ले लिया. सिमिलरली द गेस्ट हैव अराइव्ड. हेल्पिंग वर्ब हैव को हमने हैवंट, हैव के साथ नॉट लगाकर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैवंट ले लिया और इस बार हमने सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म लिया है. गेस्ट इज द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए हमने दे लिया, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए दे ले लिया. कैरल was singing a song. हेल्पिंग वर्ब was not, wasn't हो गया है और कैरल थर्ड पर्सन है तो उसके लिए हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर शी ले लिया है. She will go to Paris for higher studies. हेल्पिंग वर्ब will not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया won't. प्रोनाउन फॉर्म हमारा सेम है. तो हमने ये चीज़ देखी कि ये हमारा क्वेश्चन टैग का जो फॉर्मेशन होगा कैसे होगा. हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगाकर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेंगे
सो वी हैव ए टेबल फॉर अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, डोंट वरी कि किसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है. और फाइनली सब्जेक्ट को उसके प्रोनाउन फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे एंड देन एट द एंड विल प्लेस अ क्वेश्चन मार्क. Now let us move to the most important part. The first rule, as already discussed in a general discussion, an affirmative sentence, a positive sentence, it is always followed by a negative question tag. Example, Jenny is from Mysore. Positive sentence. Question tag negative. Isn't she? Minnie can speak French. Positive statement. Question tag can't she? Negative question tag. First rule, positive statement में negative question tag लगाना है. Second rule, a negative sentence is followed by a positive question tag. Sentence अगर negative होगा, question tag positive होगा. जो doesn't read properly, negative sentence है, doesn't लगा हुआ है, does not लगा हुआ है, question tag does she. Negative sentence, positive question tag. Susan can't speak evil, can she? Negative sentence, positive question tag. The third one, the third rule in case of imperative sentences, sentences including command, request, suggestion, order, instructions, they will take will or won't to form a question tag. तो जो imperative sentences हैं उनके जब question tag बनाने हैं तो उनके लिए या तो will या तो won't लगाया जाएगा. We use won't for invitations, can, will and would for orders. Look at an example. Take a seat, won't you? Polite invitation. Sentence is positive, question tag is negative. Take a seat is a commanding sentence. Help me, can you? Friendly request. Accordingly, we will frame the question tags. Next, close the door. A polite request. Question tag, would you? Do it now. Command. Question tag, will you? Turn the volume down. Command. Question tag, will you? Don't forget. Threat, warning. Question tag, will you? तो हम देख रहे हैं कि जब भी हमारे sentences negative हो जाएंगे तो question tag will use करेंगे. थोड़ा सा आपको इसको टेबल बनाकर ध्यान में रखना है कि कब कहाँ पर क्वेश्चन टैग यूज़ करना है. हमारे एग्जाम में क्वेश्चन टैग से सिलेबस में तो बताया हुआ है, पर हर साल क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं भी आता है. डेफिनेटली इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. नेक्स्ट रूल, सेंटेंस विथ नेगेटिव एडवर्ब्स सच एज नेवर, रेयरली, barely, hardly, seldom, scarcely, these are actually sentence with negative sense. ये ऐसे सेंटेंस हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में डाल देते हैं. तो अगर ये सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में डाल देते हैं तो इनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा. लुक एट एन एग्जांपल, शी नेवर विजिटेड यू, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, डिड शी. यू आर हार्डली रीचिंग ऑन टाइम, हार्डली सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में ले जा रहा है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, आर यू. I barely know your family, barely, it's taking the sentence to a negative sense, so question tag positive, do I. Next, nothing is working, nothing is a sentence which is giving a negative sense, sorry, nothing is a word which is giving a negative sense, so question tag will be positive. मैंने कहीं कहीं पर यहाँ पर word को sentence बोल दिया, you please ignore that. Next rule, sentences with a subject such as anyone, someone, no one, everyone, somebody, ऐसे sentences जिसमें subject indefinite pronouns है, anyone है, someone है, no one है, everyone है, somebody है, वहाँ पर question tag form करते समय इस pronoun को they से replace कर दिया जाएगा. Look at an example, nobody has completed the work, subject nobody, helping verb has. So we have converted the question tag
टेंस हमने सेम रखा है, हैव रखा है। अच्छा, नोबडी के साथ पर्टिकुलरली हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो नोबडी के साथ तो हमने वर्ब हैज यूज किया, लेकिन जब हमने इसका क्वेश्चन टैग बनाया है तो नोबडी थर्ड पर्सन सिंगुलर, सॉरी थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया है, दे हो गया, तो दे के साथ हमें जो हेल्पिंग वर्ब लेना होगा वो हैव लेना होगा, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैव दे। सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। सेकंड एग्जांपल, एवरीवन हैज कम फॉर द कॉन्फ्रेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा हैवंट दे। एवरीवन सिंगुलर सेंस देता है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज लिया है, लेकिन हम जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एवरीवन की जगह दे लिखेंगे, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव और साथ में नेगेटिव टर्म नॉट लगा देंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैवंट बन जाता है। नोबडी इज देयर इन द क्लास, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग आर दे। तो जब हमारा सब्जेक्ट एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, समबडी इस तरह का हमारा सब्जेक्ट हो, तो जब उसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो उसकी जगह जो प्रोनाउन फॉर्म हम लेते हैं वो दे बन जाएगा। सब्जेक्ट को हमेशा प्रोनाउन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो दे बन जाएगा। नेक्स्ट, सेंटेंस विथ प्रॉपर नाउन्स एंड सब्जेक्ट्स, दे विल टेक प्रोनाउंस इन द क्वेश्चन टैग्स, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जो भी सब्जेक्ट होगा वो हमारा क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन बन जाएगा। लुक एट एन एग्जांपल, टोनी रन्स रियली फास्ट, टोनी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो जब उसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो टोनी का बन जाएगा ही। यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर नहीं है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या ले लेना है, डू या डज या डिड का फॉर्म ले लेना है। टोनी सिंगुलर फॉर्म है तो डज लेकर उसके आगे नॉट लगा दिया, नेगेटिव क्वेश्चन टैग दे दिया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डजंट बन गया। टोनी रन्स रियली फास्ट, क्वेश्चन टैग डजंट ही। Next example, Betty has a variety of shoes and dresses, hasn't she? Betty थर्ड पर्सन, जब प्रोनाउन बनाना होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर she हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज है, नेगेटिव सेंस में हैज नॉट लगा के कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हैजंट she बन गया। शिकागो इज अ विंडी सिटी, isn't it? तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हमारा सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है, वहां पर क्वेश्चन टैग बनाते समय उनके प्रोनाउन फॉर्म्स लेने होंगे। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन, अकॉर्डिंगली सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का आपको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट, सेंटेंस विथ लेट्स और लेटस, दे विल टेक शैल इन द क्वेश्चन टैग। लुक एट एन एग्जांपल, लेट अस गो टू गोवा फॉर अ हॉलीडे, शैल वी। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ अब इन्होंने ऐसा नहीं रखा है। सेंटेंस में अगर लेट्स या लेटस लगा हुआ है तो क्वेश्चन टैग शैल लगकर बनेगा। लेट अस वॉच अ मूवी टुनाइट, शैल वी, दैट इज रूल नंबर 7। कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, लेट अस डिस्कस देम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन टैग, इज का इजंट हो जाएगा, आर इज आरंट, डू डोंट, does doesn't, did didn't, has hasn't, have haven't, had hadn't, am aren't, was wasn't, were weren't, would wouldn't, can can't, could couldn't।